I just pretend that I don't really care what people thinks about it, but it's seriously मुझे बहुत बुरा लगता है कोई मेरे बारे में गलत सोचे तो, and it's like मुझे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई misunderstood करे कि मैं कैसी हूँ करके. कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप? My mother is my best friend and she knows everything about me, but कुछ चीज़ें हैं जो पता नहीं है, but अभी मुझे घर भी जाना है. वेल इससे लाइक रिलेटिव्स के पास जाना उससे कि मतलब जाने के पहले यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि अब ये बोलने वाले कि हाँ अच्छा तुम मोटे हो गए, तुम पतले हो गए, तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या चल रहा है, अच्छा तुम्हारा 12th चल रहा है, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा तुम जेई के लिए कर रहे हो, अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए. एंड मतलब दे मेक द मोस्ट आउट ऑफ पॉकेट कमेंट्स लाइक आई कांट इवन डिस्क्राइब. मतलब कुछ भी बोल देते हैं तो यू जस्ट हैव टू, मतलब वो शुरू होने के पहले हम लाइक एक सेकेंड कुछ भी बोल देते कहीं से भी लाइक कि ये तेरा पिंपल आ गया, ये हो गया, वो हो गया, अच्छा तूने वेट लॉस किया, अच्छा तूने ये किया, अच्छा लेकिन मेरा बेटा तो ये करता है, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, बेटा ये करता है तो कुछ भी. डीप डाउन आपको पता है कि ये मैं किसी तरह तो भी मैनेज कर रहा हूँ, ये मुझसे हो नहीं रहा है. मैं जेई की प्रिपरेशन ही बोलना चाहूँगा. सेम हियर. आई ऑल्सो अग्री, मतलब ख़त्म करना है. लाइक मेरी 11th की कोचिंग चालू है एंड मैं तो जा ही रहा हूँ. मैं जस्ट सोच रहा हूँ काश छुट्टियाँ लग जाए जल्दी से जल्दी, मेरे को नहीं रहना यहाँ पर. 17 is a confusing age. Students are expected to make life-changing decisions, often without being taught how to understand themselves first. And parents, this phase is confusing for you too. You want to protect, guide, and secure your child's future, but sometimes the pressure comes from love, not intention. Today's episode is not about blaming students or parents. It's about understanding each other better. Because clarity doesn't come from control or rebellion, it comes from conversation. This is Gold Diggers episode 5. Let's begin with listening. So, I request my guests to introduce themselves. Hi, I am Aditi. I am in 11th grade preparing for NEET. Hi, I'm Khyati. I'm in 12th grade and I'm 18 years old. Hey, I'm Adhara Golunsi. I'm in 11th grade. I'm studying for JEE. Lovely. It's amazing to have you all here and welcome. Okay. Only request that just be honest. Just say what you feel like saying. And we are not here to judge you. We are just here to understand each other better. Okay. So the first section that we start with is education, which is conditioning, identity, and internalized worth. Understanding yourself better as far as education is concerned. You, Atharva, which belief about being intelligent have you never questioned, even though it silently governs your self-esteem? मैं ग्रेड्स ही बोलूँगा. बिकॉज लाइक हम सबके ग्रेड्स कभी भी डाउन होते रहते. जैसे 11th में मैंने बहुत सी चीज़ फेस करी है. पहले मेरे ग्रेड्स अच्छा आते थे, फिर लाइक मेरे को अच्छा लगता था कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ. बट जैसे ही वो नीचे जाने लगे मैं खुद ही को भूल गया मैं क्या करता था, मैं कैसा था. बस मार्क्स के पीछे भागे जा रहा था. So, in the sense the race to come first or to score better, ये आपका major area है जिसमें self esteem पे भी आप doubt करने लगे, right? Okay. Now my next question is your education only about marks or understanding? Was it always like this or it changed over a period of time? If yes, what brought that change? What kind of learner were you before comparison entered the room? Well, when I was like little, I used to just think I need to get done with some particular things to gain knowledge. But as I grew up, the grades and marks came into the picture, and then that's when the comparison came in. So now personally I think that grades are not everything. You should try your best to do well, but more important is to gain knowledge and be a like pretty smart and intelligent person in overall sense. And what brought this change?
Like you said that earlier you were after marks, and now you understand that it's more about applicability of the knowledge that you are getting through your studies. So what brought this change, and when did it come? Well, like he said, in 11th grade, like the grades that they keep going up and down. So that just made me realize that grades don't define your worth. What matters in the end is that you just know what you're studying and like the basic knowledge of the subject. So basically, yeah, like, and then when I just thought to myself that in the end, all we need to do is have a good job and career. So a few grades don't matter as of now. You just need to do your best. Yeah, right. Which part of your academic story do you defend most strongly? And what discomfort does that defense protect you from? Basically because of maths. I am very poor in maths, and this is because I think that I can't understand maths, but this is not true. I am not working on it, and this is the reason I literally thought that when I'll choose NEET, I don't have to study maths, but it's not true. I have to study for maths, and then I understood that I was like, मैं हमेशा बोलती थी मम्मा को कि मैथ्स कभी नहीं जम सकता मुझसे, but then I understood no, I have to give best to my maths and I have to work on it so that I could clear my physics doubts and chemistry doubts also, and sometimes bio also. And I mean, this defense comes from the fact that you know that you can do it. Yes. आप कर सकते हो, और फिर भी आप उसको उतना एफर्ट नहीं डाल रहे हो. I know that I can do it, but I think I'm very lazy. I think like just running from the problem will solve the problem, but it's not true. You have to fight for it. So yeah, that I learned. Correct. But have you accepted it before your parents and your teacher also? Thanks to NEET, when I came in 11th, then I understood that yes, I have to study for it, or else nothing will happen. Okay. So मतलब मेरी भी ऐसी ही कुछ स्टोरी है. मुझे भी मैथ्स बिल्कुल फोबिया था मुझे मैथ्स से, और मैं हमेशा कहते हैं मतलब देयर स्टडीज़ दैट से कि मदर का डर बच्चों को फॉरवर्ड होता है व्हेन एनी काइंड ऑफ फोबिया और दिस इज़ कंसर्न. बट टू बी ऑनेस्ट, माई मदर वॉज proficient with maths. She would just calculate things like this, percentages and discounts और ये वो सब वो याद कर रहे, anything to be related to numbers, and she would remember it by heart. यहाँ तक के लॉ के जो दफ़ाएँ होती हैं या रूल्स होते हैं वो तक के उनको ज़बानी याद होते थे. तो इफ़ शी इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, शी वुड जस्ट से अच्छा ये दफ़ा लगी है, मतलब ये एक्शन नहीं कर सकते, या यू कैन नॉट more than 4 people cannot gather together, और कर्फ्यू लग गया है, इस तरह की चीज़ें. बाय द नंबर शी वुड से कि अच्छा ये दफ़ा लगी है करके. और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कि ऐसा नहीं है. और फिर मैंने खुद पे भी वर्क करना शुरू किया मच लेटर. मतलब आई वॉज अ प्रोफेशनल ऑलरेडी, आई वॉज वर्किंग ऑलरेडी, अर्निंग वेल, एवरीथिंग. बट देन आई स्टार्टेड वर्किंग विथ माई maths and improving my calculations and all, and I realized that yes, I was good in it. Only thing that I did not put in that much effort, and I was for no reason just very, very afraid of it. Now with that we come to our next section, which is about career. So the fear, the survival, the narratives, and the postponed selves. Like you just keep postponing कि आज नहीं कल, शायद अभी नहीं, शाम में नहीं, रात में, ये जो होता है उसके बारे में बात करेंगे हम. Which version of yourself is being slowly sacrificed in the name of stability? ये चीज़ मैंने 11th में ही नोटिस करी है. मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स से लेके मेरे रिलेटिव्स मुझे यही बोलते कि तुझे नीट चूज़ करना चाहिए था, तो डॉक्टर बन सकता था अच्छा सा. बट मेरे को भी यही लगने लगा है अभी. मेरे को लगना चाहिए था, मुझे भी नीट करना चाहिए था, बट मैं इंजीनियरिंग में आ गया. बिकॉज लाइक मेरा भी एक ऐसा गोल था, स्पेसिफिक गोल, जो मुझे इंजीनियरिंग की कॉलेजेस के थ्रू ही अचीव मिलेगा. एंड मेरे को भी लगता है कि मुझे नीट ही ले लेना चाहिए था, बट अब मैं इधर जेई में आ गया. कितने महीने हो गए ज्वाइन करके? 1.5 साल? हाँ, 1 साल तो हो ही गया. चलो लेट्स सी देन क्या होता है. यू कीप अस पोस्टेड. What fear disguises itself as responsibility in your career decision, Aditi?
studying physics. Lol, like I know that without physics I can't clear NEET, so that is why I'm studying physics. Otherwise, you don't like it. Never. Acha. And the reason being? Basically because if I want to become a doctor, then I have to clear NEET with a good AIMS or a GMC college, and for that I need grades. And for that I think that I have to study physics too. I don't study physics truly, but I understood that yes, if I do physics, maybe I can get my dream college and I could be a good doctor and I can wear that white coat which my mother wears. Okay. So this is it. So that is your dream, and with the fear of Yes. learning, have to study physics. Yes. Not even learning. Okay. If your education did not justify your success, what career path would you choose and why? I think I will choose the career path I want right now only. Like Acha, you'll still go ahead with the same. I want to pursue like a degree in business, like for example BBA, MBA, and whatever is ahead of it. Mostly because as of now I'm very interested in it since my family is also involved in it. Actually, when I started 11th grade, I was also in NEET, but I just realized that I am more inclined towards business, so that is what I want to do. I do want to have multiple businesses. Like one of my dream businesses is like opening a cafe or something. Maybe like do a traveling agency. So a lot of, I think, out of the box businesses, I would say. And the reason why you shifted from NEET, like you were already pursuing, and did you appear also? Or you're yet to appear? You haven't appeared. I haven't. And how many months did you dedicate to that? Well, until 12th grade, I was studying. 1 full year you were preparing for NEET. Yeah, but I still am in like physics, chemistry, biology. हाँ science तो हो गई. Like I will be, the subjects in my board exams are those only. But like later as 12th was passing by, I realized that I do not see myself for the next 12 to 13 years doing the same thing. And also that since my parents do have a really good established business, I was already supposed to do that anyways. So yeah, so that is when I realized that maybe I see myself doing this. But then to start with, why did you get into NEET then? Because I loved biology, and also because my mother is a doctor. So I saw myself like her. I really wanted to be someone who could like save people and help people with their lives. But then I realized that I can do that in other ways as well. For example, I'm very interested in donation and charity. So that's how I do it now. I don't see myself, I mean. What are you still proving through your studies or career choices, and to whom? Atharva. प्रूविंग टू माई सेल्फ और मैं पढ़ी इसलिए रहा हूँ ताकि मैं अच्छे ग्रेड्स लाऊँ एंड मेरे जेई क्लियर हो जाए एंड मेरे को अच्छा कॉलेज मिले ताकि मैं लोगों को बता तो सकूँ कि देखो मैं कुछ तो हूँ, कुछ तो बना हूँ मैं. बट ये क्यों ऐसे लोगों को बताने का क्या है? इतना क्यों अफेक्ट कर रही है ये चीज़? कंपैरिजन मोस्टली रिलेटिव्स के बच्चे एंड स्टफ में मम्मी मेरे को बताती रहती कि वो देख वो कौन से कॉलेज में चला गया, वो देखो कौन सी उसकी कितनी अच्छी जॉब लग गई है. एंड उसी चीज़ से मैं ये चीज़ मेरा अफेक्ट हुआ है अंदर से कि मुझे करना ही है. इट इज़ गुड, बट देन ये भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हें भी ये चीज़ बहुत चाहिए है. यू ऑल्सो वॉन्ट टू परस्यू इट अ लॉट. ऑफकोर्स दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न. दिस कुड बी इन अ वे पुशिंग यू, और आई वुड से और जज्बा दे रहा है तुमको कि हाँ इनको तो प्रूव करके दिखाना ही है करके. पर साथ ही साथ तुम खुद भी ये बहुत ज़्यादा चाहते हो परस्यू करना, राइट? है ना? कमिंग टू रिलेशनशिप्स, और रिलेशनशिप्स ना सिर्फ ऐसे जो पेरेंट्स के साथ हैं या दोस्तों के साथ हैं, बट ऐसे भी जो हम इस एज में कॉमन है, हम वी फॉल इनटू लव रिलेशनशिप्स एंड वी स्टार्ट कॉलिंग ourselves into couples and all that. But we'll start with parents and friendships and siblings and all of that. Okay, where in your relationships do you trade authenticity for acceptance? It's like I am very talkative and I really want to share everything with my friends and classmates and all. But the thing is, like, I just pretend that I don't really care what people thinks about me. But it's seriously, मुझे बहुत बुरा लगता है कोई मेरे बारे में गलत सोचे तो.
एंड इट्स लाइक मुझे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई मिसअंडरस्टूड करे कि मैं कैसी हूँ करके, बट इट्स लाइक आई हैव स्टार्टिंग टू एक्सेप्ट इट कि ठीक है, हो जाता है कभी कभार, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ. And yeah, I just be like myself when I'm with my friends, and that's the thing I try to hide with others, because I think that if I show my real me, then they'll be not with me and they'll just go. But is it क्या ऐसा आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ में भी Never. होता है? नहीं. The outer circle Yeah. basically. Okay. तो फ्रेंड सर्कल ऐसा है जहाँ पे आप सेल्फ रह सकते हो. Yes. कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप, जैसे आपने मम्मी से शुरू किया, तो क्या ऐसा कहीं कुछ प्रिटेंस आता है कि नहीं अगर मम्मी को ये पता चल गया तो बहुत बुरा लगेगा उनको? My mother is my best friend and she knows everything about me. Okay. But कुछ चीजें हैं जो पता नहीं है, बट अभी मुझे घर भी जाना है. नहीं, बट देन कभी ऐसे होता है, ठीक है वो बातें अब नहीं करेंगे, बट स्टडीज से रिलेटेड होता है या फ्रेंडशिप से रिलेटेड होता है, या कुछ हम मस्ती कर लेते हैं, क्लास बंक करके समोसे खाने चले जाते हैं या कुछ नहीं, ऐसे? मैं मम्मी को बता देती हूँ दैट मैं आज जा रही हूँ बाहर मम्मा. तो फिर क्या नहीं बताया जाता? पता तो बहुत कुछ नहीं है, बट ओके. And mummy is your best friend, huh? Yes. Okay. Do you feel there is a pattern in the kind of friends or relationships that you get into? Khyati? I don't think so. I mean, there is not a particular pattern. I have had a lot of friends, मतलब बचपन से लेकर अभी तक के. So a pattern that might be is that I don't know. I mean, I am a type of person कि when someone just starts overstepping my boundaries, I start to distance them. So that is why I only have a few close friends, like 5-6 hai. So that is a pattern I notice the most, that once someone starts overstepping my boundaries again and again, like 2-3 बार ठीक है, but उसके बाद I just I'm done with it. I cut them off. तो ये बात मैं अक्सर अपने पॉडकास्ट में, लाइक लास्ट वाले में भी मैंने मेंशन किया था कि मैं बहुत सुनती हूँ आप लोगों के एज ग्रुप से कि मेरे सिर्फ 2-4 फ्रेंड्स हैं, 5 है, 3 है, हम 2 ही हैं, ऐसे. आई मीन यू हैव अ वेरी स्मॉल नंबर. Of course, when I was in college, I also had like 5 students का 5 of us were the closest friends. But in general, the whole class was the friend. तो जैसे आप लोगों के, मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया पे पूरे फ्रेंड्स होते हैं, है ना? मतलब 100, 200, 1000, पता नहीं कितने, 2000, 5000 कितने दोस्त हैं, मगर व्हेन इट कम्स टू क्लोज नेट जो घर आ रहे हैं या आप जिनके घर जा रहे हो या जिनके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो ही 5 होते हैं, और बाकियों के साथ में इतना इंटरेक्शन नहीं होता है. जो सोशल मीडिया पे हो गया, किसी कमेंट कर दिया, किसी ने डीएम कर दिया, कुछ बात हो गई कि अच्छा ठीक है कल मिलते हैं या नहीं मिलते या कुछ ऐसा, उतना ही रहता है. बट हमारे टाइम पे ऐसे था कि अगर 25 लोग हैं, 30 लोग हैं क्लास में, तो उसमें से 25 22 to 25 चिल्ड्रन वर टुगेदर ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड स्पेशली एट योर एज ग्रुप, 11-12 वाली एज ग्रुप में अगर कहीं जा रहे हैं तो पूरे 25 फ्रेंड्स एक साथ जा रहे हैं, मूवी जा रहे हैं तो पूरे 25 फ्रेंड्स जा रहे हैं, कहीं तब ये रेस्टोरेंट्स इतनी, कैफ़ेज़ इतने नहीं हुआ करते थे, तो समोसा खाने जा रहे हैं तो पूरे 25 एक साथ जा रहे हैं. तो और ये बॉयज़ के साथ भी था इसी तरह का, बिकॉज माई ब्रदर और माई अदर कजिन्स वर हैविंग द सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स. बट ये मैं अब बहुत वॉइड देखती हूँ आप लोगों के एज ग्रुप में और इस जनरेशन में खासकर, कि बड़े ग्रुप्स नहीं हैं आपके, वो जो ग्रुप्स हैं वो सोशल मीडिया पे ही हैं. I think social media वाले groups, they're just like acquaintances or mutuals. Because I've realized कि अभी hanging out in big groups is very tiresome and exhausting. Okay, all right. If you stopped managing other people's emotions, which relationships would change first? अथर्व. बहुत सारी रिलेशनशिप चेंज होने वाली हैं. लाइक मैंने बहुत सी चीज़ लोगों को नोटिस करा है, वो मतलब मेरे पास आते ही इसलिए ताकि मैं उनकी बकवास सुन सकूं. So you're some kind of counselor maybe for them. हाँ, मतलब बहुत से लोग हैं, एंड मैं अपनी कहते अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगता हूँ ना, वो लाइक साइड होना है यार. So they don't listen.
मोस्टली तो नहीं, एंड इस वजह से मैं लाइक ज़्यादा लोगों को बताता भी नहीं हूँ। आपने मेरे भी जैसे 2-3 दोस्त हैं, मैं इनको सब कुछ बताता हूँ, हर किसी को नहीं। ऑब्वियसली हर किसी से उतनी कंफर्ट भी नहीं आती, बट देन दिस इज एन अमेजिंग कमेंट के दूसरे आपकी नहीं सुनते पर आप सबकी सुनते हो। कंफर्ट की बात नहीं, इट्स अबाउट ट्रस्ट। लोग तो हाँ, इसे गॉसिप trust. में ही ले लेंगे। हाँ सही में, लेकिन नई टीम मिल गई। करेक्ट, दैट्स वेरी वाइज ऑफ ऑल ऑफ यू। मतलब ये एज में हमको ये समझ नहीं थी, है ना? आप अग्री करोगे? ओके, नाउ कमिंग टू मेंटल हेल्थ, where we talk about avoidance, identity, and unacknowledged grief. Have you ever experienced grief? सेकंड ग्रीफ यानी क्या? Grief यानी बहुत ज़्यादा अफसोस। बहुत हुआ है, हाँ, ग्रीफ हुआ है। ग्रीफ बहुत डीप बात है। हाँ? सही में बहुत हुआ है। खोना बात अलग है, ग्रीफ बहुत अलग है। हुआ है किस हद बात से पे? ज्यादा। मतलब कुछ स्पेसिफिक लोग जो मेरे लाइफ में पहले थे, एंड मैं उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। मेरे दादाजी है एंड मेरे कुछ दोस्त हैं। बहुत टाइम पहले जब मैं छोटा था, फॉर सम रीज़न मेरे और मेरे दादाजी की लड़ाई हो गई थी, एंड लाइक गलती मेरी ही थी उसमें, बट उन्होंने उसके बाद से हमने कभी बात नहीं करी। बट कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो गई, एंड उस चीज़ को लेकर मैं अभी भी अफसोस करता हूँ कि मैंने कभी सॉरी नहीं बोला इस चीज़ के लिए। दैट इज ग्रीफ। सो आर यू डूइंग समथिंग टू ओवरकम दिस? हाँ, मैं ट्रू रहने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों से। बट ये जो ट्रॉमा रहा है या ये जो ग्रीफ रही है, इससे अफसोस कम हो रहा है या दुख कम हो रहा है या इट स्टिल परसिस्ट? हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। That's such a sweet gesture that you realized, and at such a young age. बहुत ही I mean I really appreciate that. You, Khyati? I personally think I have faced some form of grief in every part of my life. Like for example, स्कूल में तो मैं बहुत रोती थी क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था। उसके I used to have crazy mental breakdowns that मुझे कैसे नहीं आ रहा। उसके अलावा when my family members or my dogs passed away, like मेरी नानी, when my nanny passed away, I wasn't able to spend time like he said, like she was in the hospital and I could not go, and मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, अब तो इसके पहले तो ठीक हो चुकी है वो, तो वापस आ ही जाएगी। तो एंड उसके अलावा ब्रेकअप वगैरह में भी थोड़ा सा बट हाँ हुआ तो है। So how do you help yourself? I just remind myself, like whenever I'm pretty down, I just remind myself कि this just gets over at some point of time, कभी ना कभी ख़त्म होगा and ठीक हो जाओगे आप, सब बढ़िया हो जाएगा कभी ना कभी। That's such a beautiful thing again to learn. You just have to go through it somehow. You just have to be strong. Just go through it. खत्म होएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। Right. Acceptance and time. हाँ, correct. Very good. मतलब मेरे को तो कितने सालों बाद ये चीज़ समझ में आई और तुम लोग अभी से ये जानते हो। आई एम सो हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑल्सो इनफैक्ट कि आप दोनों के लेसन्स भी बहुत क्लियर हैं। और मतलब ये सबसे अच्छी बात होती है, दिस शैल पास टू, जो हम कहते हैं एक दूसरे को कि कभी भी हमारे भी कोई फ्रेंड या हम खुद भी अगर ऐसी सिचुएशन में, तो वी ऑलवेज टेल देम कि डोंट वरी, दिस शैल पास टू। ये भी रुकेगा नहीं, जैसे वो नहीं रुका वैसे ये भी नहीं रुकेगा। ऐसे थिंक अबाउट लाइक अगर ठीक है अभी बहुत ही बुरा लग रहा है, 10 साल में लगेगा क्या? नहीं। करेक्ट, ये एक्चुअली में वर्क करता है, है ना? it does surely. And you, have you come across any such situation? Yes, like expecting too much from others. Then I learned that no, they won't work like उन्हें नहीं, वो ऐसे नहीं करेंगे जैसा तू चाहती है, लाइक मैं जैसा चाहती हूँ वैसा हर कोई नहीं करेगा। एंड आई हैव एक्सेप्टेड दैट ओके, आई विल डू व्हाटएवर आई वांट एंड आई वोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स। बट देन फिर दोस्ती या रिलेशनशिप किस काम का अगर एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो? एग्जैक्टली, बट इट्स लाइक everyone have their own way to live, and it's like you just feel to expect that it could be better. You just expect that these things could be better if they do this same way, but they have their own way to live and they can't accept it like yes, I could be this for this girl or etc etc. And then I accepted that okay, just be yourself, everything will get good. You have to just wait for it.
तो एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है ऐसा? सब तो ठीक नहीं होता है, बट काफी कुछ हो जाता है। हाँ काफी कुछ हो जाता है। लाइक आई सेड, एक्सेप्ट कर लिया, सो एवरीथिंग वुड बी बेटर। Better than today. Yes. Okay, very good. So all three of you have given such good lessons. But coming to the questions, more questions on this area. ठीक है? Which feeling feels unsafe to fully experience, and what story do you tell yourself to avoid it? Falling in love with someone. Okay, so that feels very unsafe. Yes, it feels very unsafe to fall in love with someone. It's like I am good to be alone. At such a young age already. Yeah. मतलब अभी से ये थॉट है? हाँ। और थोड़ा दिल तोड़वाओ फिर। नहीं, और नहीं, नहीं, मैं मम्मा के साथ खुश हूँ, मैं मम्मा का दिमाग खा लूंगी। बस काफी है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है ना, enough to irritate. Okay, that's nice. What makes you feel most exhausted even before starting? Like in what aspect? Any aspect के अब ये करना है, या सुबह ओ गॉड सुबह 5 बजे उठना है, या ट्यूशन जाना है, या कॉलेज जाना है, या फिर रिलेटिव्स के पास में जाना है, या शादी में जाना है कोई, या फैमिली डिनर पे जाना है। तो what actually exhausts you before even it has started? Well, इससे लाइक रिलेटिव्स के पास जाना उससे कि मतलब जाने के पहले यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि अब ये बोलने वाले कि हाँ अच्छा तुम मोटे हो गए, तुम पतले हो गए, तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या चल रहा है, अच्छा तुम्हारा 12th चल रहा है, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा तुम जेई के लिए कर रहे हो, अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए। एंड मतलब दे मेक द मोस्ट आउट ऑफ पॉकेट कमेंट्स, लाइक आई कांट इवन डिस्क्राइब, मतलब कुछ भी बोल देते हैं। तो यू जस्ट हैव टू, मतलब वो शुरू होने के पहले हम लाइक एक सेकेंड कुछ भी बोल देते कहीं से भी, लाइक कि ये तेरा पिंपल आ गया, ये हो गया, वो हो गया, अच्छा तूने वेट लॉस किया, अच्छा तूने ये किया, अच्छा लेकिन मेरा बेटा तो ये करता है, अरे मैं क्या करूँ, आपका बेटा ये करता है तो कुछ भी। एंड एवरी सिंगल टाइम उनका एक कमेंट, अब कितने बड़े हो गए, आपको मैं याद हूँ क्या, आप कितने बड़े हो गए, आपको मैं याद हूँ। ये चीज़ तो है। लाइक मैंने आपको बचपन में हाथ में पकड़ा था, अरे मुझे कैसे कहीं से भी दे मेक द weirdest comments and comparison तो छोड़ ही दो। What is that one thing that you feel you are surviving through, just managing to sail through somehow, and do you think you can share it with someone? ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी फीलिंग है जो आप सोच रहे हो कि मैं बस सर्वाइव कर रहा हूँ इस पे, मैं जब जैसे बोट सेल करती है ना, समहाउ वो किनारे तक पहुँचने वाली है, दिख रहा है किनारा आने वाला है, और वो कैसे तो भी मैनेज करती है पहुँचने के लिए, और पर डीप डाउन आपको पता है कि ये मैं किसी तरह तो भी मैनेज कर रहा हूँ, ये मुझसे हो नहीं रहा है। मैं जेई की प्रिपरेशन ही बोलना चाहूँगा। सेम हियर। आई ऑल्सो अग्री, मतलब ख़त्म करना है। लाइक मेरी ये 11th की कोचिंग चालू है एंड मैं उधर जा ही रहा हूँ, मैं जस्ट सोच रहा हूँ काश छुट्टियाँ लग जाए जल्दी से जल्दी, मेरे को नहीं रहना यहाँ पर। ओके, एंड दो इट इज़ योर ओन चॉइस, किसी का प्रेशर नहीं है कि ये करना ही है तुमको, फिर भी ये हो रहा है। ओके, अब हम आते हैं एक्सपेक्टेशंस पे, जो आपने कहा कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है, बट हम एक्सपेक्टेशंस की बात करेंगे जो हम इनहेरिट करते हैं, दैट इज़ इनहेरिटेंस, मम्मी से, पापा से, कि मेरी मम्मी बहुत नर्वस नेचर की है इसलिए मैं भी ऐसी हूँ, और इसलिए मैं मुझसे कोई ये ना एक्सपेक्ट करे, या मैं किसी से ये ना एक्सपेक्ट करूँ, ठीक है, या ओबीडियंस, जो हर बड़ा आपकी लाइफ में यही एक्सपेक्ट करेगा, या इवन फॉर दैट मैटर योर फ्रेंड्स और योर सिबलिंग्स, दैट देयर शुड बी ओबीडियंस, एंड द साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब इट इज़ साइलेंटली कॉन्ट्रैक्टेड और अग्रीड ऑन दैट मेरी फ्रेंड ने अगर झूठ बोली है तो मैं भी झूठ बोलूँगा या बोलूँगी, ठीक है। तो ये जो साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, या कई बार सिबलिंग्स के बीच में भी होते हैं कि दीदी खिड़की कूद के गई थी पर मैं कुछ नहीं बोल सकती, दीदी सो रही थी, ये मुझे पता है। ठीक है, तो ये जो साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हम इसके थोड़ा सा we'll dive deeper into this. Which expectation did you inherit without consciously consenting to it? ऐसा कौन सा expectation है जो आपने unknowingly, without intentionally, you have just
inherited it from your parents or your sibling or your elders, some मामा चाचा anybody, जो कि आपको लग रहा है कि आपने कभी consciously इसको consent नहीं किया था कि हाँ मैं ये expectation रखूंगी करके, या आप मुझसे ये expectation रखो करके? I think one of them is like कि अच्छा एजुकेशन करियर होना चाहिए, यू हैव बिकॉज यू नीड टू बी लाइक उससे रिस्पेक्ट मिलेगा आपको. लाइक ऑल ऑफ माई लाइक पेरेंट्स एंड मामा वगैरह वो सब दे आर वेरी लाइक वेल एजुकेटेड. लाइक मेरे नाना जी ही वॉज इन IIT बॉम्बे, माई मदर वॉज इन GMC नागपुर एंड माई डैड इज रियली गुड एट बिजनेस. सो आई हैव लाइक इनहेरिटेड दैट कि वही सेम कि अच्छा अच्छे से करो तुम, मतलब अच्छे से एजुकेशन करो, करियर अच्छा बनाओ, एकदम किसी को कुछ बोलने आना ही नहीं चाहिए आपको कि कोई कुछ गलत बोल ही नहीं सकता. इतना अच्छा से करो पढ़ाई, अपना खुद के ऊपर नाम से बनाओ सो यू विल बी रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन. सो दिस इज़ वन थिंग आई हैव इनहेरिटेड. What part of your identity exists primarily to keep others comfortable, Aditi? Not being angry, because I am a very angry, मतलब I get angry very easily, so I pretend like I'm very cool person, you know. You just can't talk with me. मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगी. You can tell the tea, you know. Like अंदर ही अंदर मुझे चिढ़ आ रही होती है, but I'm like, oh my god, ऐसे सोच रहे हैं लोग. Let's know more. अंदर ही अंदर गुस्सा उबल रहा है, but it's like, okay, tell more. What they are saying? No, this is not true. Tell them that this is true. Tell them this thing. So you even take that effort कि आप जाके फिर बताओ या उनको ये मैसेज दो? No, it's not like that. Like, हाँ, but जो आपको बता रहा है तो अच्छे से करो ना. तो मतलब बेसिकली पूरा पता चलने तक के you just सब्सटैंशियल बुराई करो. हाँ. अच्छी चीजों के बारे में बुराई करो, मतलब जेन्युइनली बुरी चीजों के बारे में बुराई करो. है कि नहीं? Okay. What fear would you have to confront if you disappointed people honestly? ये चीज़ तो लाइक मैं हर रोज़ ही इस डर से जा रहा हूँ कि व्हाट इफ़ जो मेरे पीपल क्लोज मेरे साथ में क्लोज में है, एंड व्हाट इफ़ अगर वो मुझे छोड़ के चले जाए बिकॉज ऑफ माई सिली मिस्टेक्स एंड स्टफ, अगर मैं उन पर गुस्सा कर गया एंड लाइक मैंने उनकी बातें नहीं सुनी, तो क्या पता वो मुझे छोड़ के चले जाए. एंड इस डर से मैं लाइक मोस्टली मैं डरता हूँ, बट एक ना एक टाइम मुझे इन चीज़ से एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब गए तो गए. मतलब ये सिर्फ दोस्तों पे ही एप्लीकेबल है? पीयर्स जो है आपके एज ग्रुप के हैं उन्हीं पे ही अप्लाई होता है? नहीं, हर किसी पे, मतलब हर किसी पे, मतलब कि लाइक मैं कभी ऐसा रिलेशनशिप में नहीं गया, बट अगर मैं गया होता तो मेरे को ऐसा रहता है, मेरे को ऐसा लगता कि मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा रखना पड़ेगा कि रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक चले. तो वो डर अभी से है कि कहीं मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिससे कि मेरा रिलेशनशिप टूट जाए या मेरे फ्रेंड्स मुझे छोड़ के चले. ये मेरे को पहले से ही है, लाइक बहुत पहले से, जब मैं 6-7 साल का था तब से. ओके, सो यू हैव दिस फियर ऑलरेडी देयर. ओके, एंड डू यू वर्क ऑन इट? डू यू डू समथिंग? मैं अब थोड़ा सा चिल हो गया हूँ कि अब वो जा ही रहे चीज़ें जो अनजाने ही वाली, तो मैं नेचुरली लेके रहता हूँ ना, मुझे क्यों अपना मास्क क्यों ऑन लगाना उसके ऊपर. Who might you become if approval was no longer the currency of belonging? ख्याति, as in अगर belongingness इतनी question में ना रहे तो आप कैसा रहना पसंद करोगे? Like in aspects of new friendships or relationships? Anything in life, whether it be studies, whether it be behavior, dressing, having relationships or having friendships or anything. अगर आप true हो, अगर आप honest हो, तो ऐसी क्या चीज़ आपको मतलब लेट गो करनी पड़ेगी फिर? I think one of the things is trying too hard to like make people like you, like efforts देना हर चीज़ पे basically. हाँ, like अगर मैं अच्छी फ्रेंड हूँ तो I will spend hours listening to your रोना धोना, which I do not. मतलब ठीक है, you can come to cry, but like ऐसे वो दिन भर I cannot listen. But this is just an example. So like बस ज़्यादा efforts देना, trying to make people to like you, like इतना people pleasing करना, that is something I would let go. Oh, that's amazing. Revelation, I would say. Okay, so on that note, we have finished with our all 5 sections of questions, but we are not done yet. We'll have a very quick fire round.
Okay. So, think fast, be honest, no overthinking, one line answers only, and whatever comes first to your mind, just say it. Okay. So, we'll start with Atharva, you. Okay. So, the first question is from the area education and career. All right. That mindset. Marks or mindset? What actually decides your future? Marks. Degree or skill? Which do you work on more? Skill. Google or teacher? Whom do you trust more? ChatGPT. Okay. Shortcut or slow learning? What do you secretly prefer? Short. Safe career or risky dream? What scares you more? Risky dream. Scrolling or studying? What eats more of your time? Scrolling. Okay. Coming to the next rapid fire and on to our next participant. The topic is relationships, validation, and identity. Being liked or being real, which matters more to you? Being real. Seen on social media or understood in real life? Understood in real life. Left on read or being alone, what hurts more? Being alone. Fitting in or standing out, what do you actually do? Fitting in. Blocking people or talking it out? Talking it Your out. go-to move. Okay. Friends' opinion or self-respect, what wins usually? Self-respect. Now, our third participant and third section, mental health, expectations, and reality check. Tired or just bored, what are you mostly? Tired. I'm fine or I need help. What do you say more? I need help. Pressure from parents or pressure from yourself? From myself. Feeling reels or actual effort, what do you consume? Actual effort. Blaming system or taking responsibility, your instinct. Taking responsibility. Excuses or discipline, what holds you back more? Excuses. Okay, so on that note, we came to our final section, and that's the questions that you can ask me now. So, is there anything that you would want to ask, Atharva? Really. Okay. I have a question that you said आपके college में you had like 20-25, तो उससे I was like curious about your college life. Is there something that was like a highlight of your college life? Highlight was we were just having fun. Honestly, I would say that this is that age group from say 16 to like from the 11th standard, as we call the junior college here, and up till graduation complete हुए तक, ये जो एज फ्रेम होता है 5 साल का, ये इतना फन होता है, इतना लोग मस्ती करते हैं और ये मेमोरीज इतनी फॉन्ड होती है कि अरे हम ऐसे किया करते थे, हम ऐसा बैठते थे, हम यहाँ जाते थे, हम ये फ्रेंड्स के साथ में स्विमिंग के लिए जाते थे या साइकिलिंग के लिए जाते थे. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ लर्निंग ऑल्सो. एंड आपका भी एज अ पर्सन ऑल्सो आप बहुत इवॉल्व होते हो ये पीरियड में, क्योंकि स्कूलिंग बहुत प्रोटेक्टेड रहता है. घर में भी आप स्कूलिंग लाइफ तक के बहुत प्रोटेक्टेड रहते हो. यू डोंट गो आउट इंडिपेंडेंटली, यू डोंट मूव अराउंड इंडिपेंडेंटली. बट जब आप 11th-12th शुरू करते हो तो फिर वहाँ से आपका इंडिपेंडेंट मूव इनटू सोसाइटी शुरू हो जाता है. यू मेक योर ओन फ्रेंडशिप्स, यू मेक योर ओन रिलेशनशिप्स, यू इंटरेक्ट विथ योर टीचर्स बाय योर सेल्फ. तो वो पेरेंट टीचर मीटिंग का कि मम्मी को ही बताएंगी टीचर या पापा को ही बताएंगे, वो भी ख़त्म हो जाता है. यू गो एंड टॉक, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. और ये जो फ्रेंडशिप्स रहती है, आई हैव रियलाइज कि स्कूल और कॉलेज की फ्रेंडशिप्स लाइफ लॉन्ग रहती हैं. मतलब अभी भी जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो स्कूल से हैं या जो कॉलेज से हैं, वो आज भी मेरे फ्रेंड्स हैं. थैंक टू सोशल मीडिया कि वो हम कनेक्टेड रहते भी हैं, मिलते भी हैं, बहुत ऑफन भी मिलते हैं कई बार. और अब मैं बहुत प्राउडली बताती हूँ कि ये मेरी बचपन की फ्रेंड है. वी आर टुगेदर सिंस नर्सरी. सो दैट्स अ काइंड ऑफ achievement, I would say, to have a friend. Yes. or have friends of for a lifetime actually. और बेसिकली मतलब उस टाइम पे जो पढ़ा भी ना, वो भी काफ़ी कुछ याद रहा, जबकि उस टाइम पे नहीं याद रहता था. पर आज मैं रिकॉल करती हूँ तो मुझे याद है मैक्सिमम चीज़ें उस टाइम पे पढ़ी हुई, बिकॉज साइकोलॉजी वॉज वन ऑफ माई मेजर सब्जेक्ट्स. आई रिमेंबर लॉट फ्रॉम साइकोलॉजी ऑफ दोज डेज. जितना मैं मास्टर्स का नहीं याद रखती उतना मैं ग्रेजुएशन का याद रखती हूँ, फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाट. बट हाँ, ये ज़रूर है कि वो फ्रेंडशिप्स बहुत ही अच्छी रहती हैं एंड इट स्टेज. सो आई गेस ये मैं हर एक को सजेस्ट करती हूँ
कि आप बहुत मस्ती करो, बहुत घूमो, बहुत खेलो, बहुत फन करो, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, जितना हो सके गैजेट से दूर रहो और आउटडोर्स रहो। मतलब मुझे याद है कि हमारा वापस आने का कोई टाइम ही नहीं होता था, डेडलाइन दे देते थे पेरेंट्स के तुमको 6:30 के पहले घर आना है, और हम सुबह 6 बजे से निकले, 9 से निकले, 7 बजे से निकले, कहाँ किसके यहाँ लंच हो रहा है, किसके यहाँ ब्रेकफास्ट हो रहा है, किसके यहाँ शाम का स्नैक हो रहा है, कोई आइडिया नहीं रहता था पेरेंट्स को। तो ट्रस्ट बहुत था लोगों में, आपस में भरोसा भी बहुत था। तो एक डिफरेंट लाइफ थी हम लोगों की। बट हाँ, एट द सेम टाइम पेरेंटल रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा थे जो आजकल आप लोगों को नहीं है। आप लोग यू लिव अ बेटर मोर, यू लिव विद मोर फ्रीडम, आई वुड से। तो वो एक है। बाकी हमको ये रिस्ट्रिक्शंस थे कि आप किससे दोस्ती करोगे, किससे नहीं करोगे, लाइक बॉयज़ वर नॉट अलाउड एंड इस तरह की चीज़ें थी हमारे टाइम पे, एंड विच वॉज ओके एंड वी वर ऑल्सो ओके विद इट। इट वॉज फन। बट आजकल टाइम भी कहाँ है, लाइक कोचिंग, स्कूल, बच्चे इतने बिजी हो जाते हैं। एंड यू नो छोटे छोटे बच्चे, लाइक मेरे एरिया में, तुम खुद बच्चे हो। ना, आई मीन टू से 6 to 7 years old type kid, like you know, वो छोटे से लाइक नर्सरी KG1 में स्टिल उनसे बड़ी बैग लेके ट्यूशन जा रहे हैं। पढ़ने क्या जा रहे हो तुम? इट्स लाइक घर बैठ के पढ़ो, एंड यू नो इट्स टाइम दैट गो आउटसाइड एंड प्ले, बेफिक्र होके खेलो, और उसमें तुम अपनी बैग लेके जा रहे हो, इतनी बड़ी बैग लेके पढ़ने। लाइक आई फील सैड फॉर देम। एंड फॉर योरसेल्फ, फॉर योरसेल्फ व्हाट डू यू फील? नीट लेने के बाद क्या ही अच्छा रहेगा। Okay, you were saying something. नहीं, and that was my question. Any other questions you have? Off screen you versus on screen you, Like this only. like this only. Yeah, Is you it can true? ask Is it honest? Yeah, very much the same. That's तो nice. मुझे नहीं लगता कि आप मतलब unless and until आप बहुत अच्छे एक्टर हो, आप अपने एक आइडेंटिटी छोड़ के दूसरी आइडेंटिटी में ऐसे you know just change into another personality or another person, वैसा नहीं हो पाता। आप जैसे हो वैसे ही रहते हो। बट हाँ, थोड़ी सी और लाइक आई सोबर डाउन व्हेन आई एम प्रोफेशनली इन्वॉल्व, लाइक अगर मैं सेशंस ले रही हूँ या कुछ ले रही हूँ, बट थोड़ा थोड़ा बीच बीच में वो स्नीक पीक्स आते हैं जो मेरे पर्सनल सेल्फ के रहते हैं। तो इवन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सीरियस थिंग्स, तो कुछ एक विटी सेंटेंस आ जाएगा, स्टेटमेंट आ जाएगा उसमें। That's how I am. I've always been like this. Anything else? आप कोई लाइफ लेसन शेयर कर सकते हैं हमारे साथ जो हम लाइक हमें आगे जाके काम में आएगा? लाइफ लेसन यही रहेगा कि जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम। बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लो किसी भी चीज़ का। बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। दैट्स एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन दैट यू आर फॉलोइंग एंड एवरीथिंग। बहुत ही ऑनेस्टली तुम लोग कर रहे हो ये चीज़। बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? अगर खुदा ना खास्ता आप नहीं सक्सेसफुल होते इसमें, तो जो भी आप करोगे उसमें सक्सेसफुल होगे ही होगे, ये गारंटी है। नहीं भी हुए तो यू कम टू मी, आई विल हेल्प यू गेट अचीव दैट। ये मैं श्योर करती हूँ हर बच्चे को। और मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, लाइक हमारा इंट्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं हुआ। आई एम एन एजुकेशनिस्ट एंड अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, तो मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। और जो बच्चे नहीं अचीव कर पाते अपने गोल्स मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद में भी, एंड देन दे थिंक दैट इट इज़ एंड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे भी बच्चों को मैं काउंसल करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है, जो मैं उनको भी कहती हूँ हमेशा, कि तुम जो भी डिसाइड करोगे, वी विल मेक श्योर कि तुम उसमें सक्सेसफुल हो जाओ। आई विल मेक श्योर, एंड योर पेरेंट्स, आई विल मेक योर पेरेंट्स ऑल्सो टू हेल्प यू विद इट, एंड वी विल मेक श्योर दैट यू आर सक्सेसफुल इन दैट। एंड सक्सेस का भी पैरामीटर बहुत अलग अलग होता है ना? जैसे मेरे लिए हो सकता है पैसा सबसे बड़ा सक्सेस का पैरामीटर हो सकता है आपके लिए फैमिली लाइफ सक्सेस का पैरामीटर हो, कि मैं जहाँ भी रहूँ मेरे मेरी फैमिली मेरे साथ में रहे, ठीक है? इसके लिए कुछ और हो सकता है, उसके लिए कुछ और हो सकता है। बट जो भी आपका पैरामीटर होगा उसको अचीव करने में आई कैन गेट यू अप टू 90% क्लोज टू दैट। ये मैं अश्योर कर, एंड नॉट जस्ट मतलब सिर्फ डींगे नहीं मार रही हूँ, ये मैं कर चुकी हूँ इसलिए बोल रही हूँ। तो जो भी डिसाइड करें बच्चे, मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स से भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है कि जस्ट
बी देयर। और बच्चों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बात करो। और ये द लाइफ लैब चैनल शुरू करने का भी मेन मकसद वही था कि मैं जब काउंसलिंग करती हूँ तो पेरेंट्स भी हारे हुए आते हैं और बच्चे भी परेशान आते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं ये सुनता ही नहीं है, पढ़ता नहीं है। मदर्स फॉर गर्ल्स ऑल्सो दे वुड से द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स कि पता नहीं क्या करती रहती है, कमरे में बंद रहती है, सुनती नहीं है, एंड दिस एंड दैट। तो मेरा ये कोशिश थी कि एक ऐसा अटेम्प्ट है ये जिसमें कि आप लोग बोलें, और अगर इससे एक बच्चा भी हेल्प ले सके या अपने आप को समझ सके, और एक पेरेंट भी ये सोच सके कि अच्छा यही चीज़ तो मेरी बेटी भी बोलती है, यही चीज़ मेरा बेटा बोलता है, और नाउ आई अंडरस्टैंड इट, जो कि इससे वो पर्पस सॉल्व हो रहा है। मुझे इसके पहले भी जो बच्चे आए हैं, जो एपिसोड्स हुए हैं, उससे ये रिस्पॉन्स ज़रूर मिला है कि यू नो देर आर अ लॉट ऑफ गैप्स दैट आर बीइंग bridged by through this. So I think if I'm successful in achieving that with just one person also, I think I'm successful. तो यही अटेम्प्ट है इसका। ओके, थैंक यू सो मच, यू हैव बीन अमेजिंग पार्टिसिपेंट्स। आप लोगों ने जो कहा है, आई एम श्योर बहुत से पेरेंट्स और बहुत से स्टूडेंट्स उससे रेजोनेट करेंगे, उसको समझेंगे। और जो सवाल आपने पूछे वो भी बहुत अच्छे थे। 2 मैंने लिख कर लाई थी आप लोगों के लिए क्वेश्चंस कि आप लोग मुझसे पूछ सको, बट वेरी ऑथेंटिकली आप लोगों ने जो सवाल पूछा वो बहुत मीनिंगफुल है, क्योंकि वो आपके दिल से आया है। और मैंने भी बहुत ऑनेस्ट कोशिश करी है उसको अच्छे से आंसर करने की। आई होप हमारा ये अटेम्प्ट स्टूडेंट्स को हेल्प करे, पेरेंट्स को हेल्प करे, एंड आप लोग तो अमेजिंग है। थैंक यू सो मच।